Hello, everyone. My name is Tayyiba Qureshi. I'm an attorney here at Helen Tarakich Law. This is part 4 of our T Visa series, and I'm so happy to have with me today Helen Tarakich and Soumya Gupta. नमस्कार, मेरा नाम सौम्या गुप्ता है और आज हम आपके लिए अपने टी वीज़ा सीरीज का पार्ट 4 लेकर उपस्थित हैं और हमें आज बहुत सारी जानकारी मिलेगी इसके आखिरी हिस्से में, जो हमने अभी तक शायद थोड़ा कम दिया होगा आपको, या हम कोशिश करेंगे आपको कि इसके और जो बाकी हिस्से हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आए। Hi, I'm Helen Tarokich. I'm a North Carolina board certified immigration law specialist. Thank you so much for joining us in this video. I think it's going to cover some of the most important things that we ever have to address in the T visa process. So if you've watched our other parts or you've just caught this one for the first time, please stay tuned. Thank you so much. So, as Helen mentioned, we have already had several videos that we went over different parts of the T visa process. And so now we're going to learn a little bit about inadmissibility today and also reporting. तो सौम्या जी आज हम सीखेंगे कि inadmissibility क्या होती है और रिपोर्ट कैसी लिखी जाती है, कैसे तैयार की जाती है, जो हमने टी वीज़ा के लिए एक रिपोर्ट लिखनी होती है बताने के लिए कि इस एप्लीकेंट के साथ क्या हुआ। तो पहले हम सीखेंगे inadmissibility के बारे में। Helen, can you explain to us what is inadmissibility as part of a T visa application? Sure. So when we have established that someone is a victim of a labor or sexual abuse or attempt or conspiracy to commit that type of victimization, then we want to file that T visa. But oftentimes people say, but I have these problems on my record. I have an old criminal history. Maybe it was for accidentally selling cigarettes or alcohol to someone who was underage in a store that they worked in, or they came into the United States walking across the border, which is an immigration violation and also a misdemeanor. So there may be some things on their history that can affect how immigration is going to make a decision on the case. So what we're looking for is to see, are there immigration violations or criminal violations or offenses that can make a person inadmissible, or another word for that is really ineligible for the T visa. And if they do come against that barrier, then we want to apply for a waiver. So a waiver is where the T visa applicant, as part of the paper application that we file with immigration, we're including an extra form for them that asks the government to forgive or waive or grant a waiver for those criminal or immigration violations. So when we think about eligibility for a T visa, first we establish that yes, there was human trafficking. But the second part comes down to the individual who's applying. Do they have something on their history that would close the door to the T visa unless a waiver is granted? And if they do, then we file that waiver application. Almost all of our clients need that waiver application. And hopefully at the end, the result will be that the door is now open thanks to a waiver approval where those offenses are forgiven and the T visa is ultimately granted. Thank you so much. तो सौम्या जी जैसे कि हमने सुना हम पहले ये सोचते हैं कि इन लोगों के साथ जो ये अप्लाई कर रहे हैं टी वीज़ा के लिए, इन लोगों के साथ हुआ क्या? क्या ये ट्रैफिकिंग के विक्टिम हैं? क्या इनके खिलाफ ट्रैफिकिंग हुई है? चाहे वो काम पे हो या घर में हो या कहीं और हो, लेबर ट्रैफिकिंग या कमर्शियल सेक्स ट्रैफिकिंग। लेकिन उसके बाद हम उनकी हिस्ट्री भी खुद देखते हैं कि उनसे कोई क्राइम्स हुए हैं, यानी कि या तो इमिग्रेशन के गुनाह हुए हैं या तो और कोई गुनाह हुए हैं। और हेलन ने ये मिसाल दी थी कि अगर आप कहीं दुकान में काम करते हैं और आपने गलती करके किसी को अल्कोहल बेच दी या सिगरेट्स बेच दिए, जो वो माइनर था, यानी कि अंडर 18 कोई बच्चा था जिसको आपने गलती से उनका कार्ड नहीं देखा और वो चीज़ें बेच दी, आपको फिर टिकट मिल गया। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं इनएडमिसिबल, यानी कि अगर ये चीज़ें माफ़ नहीं होती तो फिर आपको ये टी वीज़ा नहीं हासिल हो सकता। ठीक है ना सौम्या जी? तैयबा जी, मैं यहाँ पर ये और ऐड करना चाहती हूँ कि इनएडमिसिबिलिटी काफी तरह से हो सकती है। जब आप इस देश में आते हैं, कई बार बॉर्डर क्रॉस करके आप आते हैं,
कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आपको डर लगता है और अक्सर हमारे क्लाइंट्स के साथ में जो हमारा अनुभव है कि आप कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें हमें आप उस तरह से ना बताएँ या वो चीज़ें हमें उस तरह से पता ना चलें क्योंकि आपको अच्छी नहीं लगती वो बातें बताने में जिनको कि हम कह रहे हैं कि वो इमिग्रेशन की निगाह में गुनाह है या इमिग्रेशन की वजह से जिसको आप अक्सर कहते हैं कि क्या मेरा केस अच्छा है? और ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको कभी किसी ने बताई नहीं होती हैं कि इनएडमिसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हम उन वजहों को बताएँ जैसा तैयबा जी आपने एक बार बताया कि अगर कभी आपने किसी माइनर को कोई ऐसी सेल कर दी है जिसके लिए आपको टिकट मिल गया है। दूसरा अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं अथवा आपके अपने देश में या इस देश में आपका कोई भी ऐसा आपराधिक मामला है, चाहे वो छोटा-सा भी हो जैसे कि आपको कोई टिकट मिली हो, आपको कोई रिटन वायलेशन वार्निंग मिली हो, आपका कोई स्टोर में किसी और मामले में आपका नाम घसीटा गया हो, जबकि आप जानते हैं कि वो मामला सही नहीं था, या आप दोषी करार दिए गए हों, बहुत सारी तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो आप उससे घबराएँ ना, आप हमें वो सारी चीज़ें बताएँ चूँकि जो दूसरी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं वो है जैसा कि हेलन ने आपको बताया कि वेवर, वो एक गलती है या गलतियाँ हैं जो आपसे हो गई हैं, वो उसकी माफ़ी के लिए हम एक वेवर फॉर्म होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं और इस फॉर्म का नाम होता है I-192 जो हम आपके टी वीजा एप्लीकेशन के साथ फाइल करते हैं और सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस क्लाइंट से ये सारी गलतियां हुई हैं कृपया आप इसको माफ कर दीजिए और वो माफी जब आपको मिल जाती है तब जो टी वीजा का दरवाजा आपके लिए होता है वो खुल जाता है अगर वो माफी नहीं मिलती है तो दुर्भाग्य से वो दरवाजा आपके लिए नहीं खुल सकता जिसका मतलब है कि टी वीजा आपके लिए फाइल नहीं किया जा सकता। तो एक इस तरह से समझेंगे साधारण भाषा में कि अगर किसी से कोई गलती हुई है और अगर आपने सच्चाई से आगे बढ़ के उस गलती को स्वीकार किया है, आपने हमें बताया है कि जी मेरे से गलती हो गई है, इसको आप माफ कर दीजिए। उस तरह की एक साधारण सी बात है कि आप सरकार से मांगते हैं और ये ऐसी चीजें हैं तैयबा जी जो कि ज्यादातर माफीनामा मिल जाता है, हमारे क्लाइंट्स जी, को घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। So, Helen, a little bit more about the 192 waiver of inadmissibility, which, as you said, is part of many T visa applications, sometimes also part of U visa applications, just kind of other immigration remedies that we work on for our clients. And of course, the most important thing about the relationship between an attorney client is, of course, confidentiality, where we keep your secrets, but also that the client must trust the attorney and tell the complete and honest truth about their situation, their criminal history, their offense records, everything that has happened to them. We want to know. We'll keep it confidential until it becomes something that we put into the application with their permission. And why is it so important, Helen, at the time of the T visa application, or also a U visa application, or any other application where we're filing the waiver? Why is it so important to get that into the application at this time, all the criminal offenses that this person may have had or immigration offenses? From a practical standpoint, if someone comes to you and says, I've made a mistake in my past and now I'm requesting forgiveness, it is so much easier to do that when you are assured or confident that going forward, they're not going to be breaking more laws or committing additional fraud, for example. But if you say, I'm so sorry, I made these mistakes in the past, and only disclose 2 out of 4 of them, and the government catches you lying to them, then it's really hard to forgive someone because if they're lying to you now, why would you believe they're not going to commit another crime or commit fraud again in the future? And sometimes it can be accidental or it comes from a place of fear, but we really want to avoid missing out on completely disclosing everything that does need to be waived so that when the application is approved, we know that the waiver was full and complete. And those waiver approval notices actually list out what has been forgiven. So then later, if you're trying to do a green card application and it turns out that something wasn't disclosed, oh gosh, those green card applications have a lot of questions on them. And we're certainly never going to lie to the government, right?
So if we found out something wasn't disclosed previously, then we're facing all kinds of other issues like having to amend an application, file an additional waiver possibly, or something could be bad enough at some point where we wouldn't even be able to help the client any further. So it really is important for people to try to remember, even if it's been dismissed, even if it's been expunged or deleted, even if it was a juvenile offense, even if they weren't caught doing it, like coming in and out of the country more than once, but only maybe caught one time, we need to know each time the person was caught. We still need to have all that information so that we can properly complete those applications. थैंक यू हेलन फॉर सच अ बिग एक्सप्लेनेशन। सो हमारे दर्शकों के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि हमेशा आपने जो अगर हमारे दूसरे पार्ट्स देखे हैं, हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं सीरीज में कि सच्चाई का एक बहुत बड़ा स्थान है जब आपके वकील के साथ आपके रिश्ते की बात आती है, और ये रिश्ता इतना ज्यादा अहमियत रखता है कि इस पूरी सच्चाई पर आपका केस टिका होता है। तो यहाँ पर ये बात बताना हम जरूरी समझते हैं कि I-192 वेवर या जो माफीनामा है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप हमें सारे सच पहले से बताएं। वो सच ऐसे सच हो सकते हैं कि आपको कोई चीज बचपन में हुई थी, बचपन में कोई आपसे गुनाह हुआ था और उसकी आज आप माफी मांग रहे हैं, ऐसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप डर के कारण, शर्म के कारण हमें वो चीजें नहीं बताते हैं, और जिसकी वजह से फिर जो केस आपके आगे चलते हैं इमिग्रेशन में, वो ग्रीन कार्ड का भी केस हो सकता है, उस समय वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर हमें वो I-192 का अमेंडमेंट डालना पड़ता है। मतलब कि हम उनसे वो सरकार से बोलते हैं कि ये चीज रह गई थी बताने से, और उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। कृपया हमें सिर्फ सच और पूरा सच बताएं। अगर आप इस देश से बार बार अंदर या बाहर गए हैं और आपने सिर्फ हमें एक बार के बारे में बताया है, वो काफी नहीं है। सरकार को पता चलेगा, आज नहीं चलेगा तो कल पता चलेगा, और जब वो पता चलेगा तो वो आपके लिए भी एक बड़ा कारण बन सकता है और एक हमारे लिए भी बड़ा कारण बन सकता है। और आप जानते हैं कि ये हमारे रिश्ते के भी खिलाफ है। वकील और क्लाइंट का जो रिश्ता है, वही रिश्ता हमारा सरकार के साथ में है कि हमें वो रिश्ता अच्छा रखना है और हमें सरकार से सच और सिर्फ सच बोलना है। सो आपसे गुजारिश है कि आप हमें वो सच्चाई बताएं। अगर आपको 3 टिकट्स मिली हैं, ऐसा मत कीजिए कि आप हमें सिर्फ एक टिकट के बारे में बता रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमें, चाहे वो गुनाह आपका माफ हो गया था, चाहे आपको उसके लिए कोई कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ी थी, छोटी से छोटी चीज, और इसीलिए आपसे हम बहुत सारे सवाल पूछते हैं, हमारी टीम बहुत सारे सवाल पूछती है। सिर्फ वही कारण होता है कि कई बार आप भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, बहुत सारी काउंटीज में रहते हैं, बहुत सारी जगह में रहते हैं, कई बार चीजें ऐसा हो जाता है कि दिमाग से छूट जाती हैं बताने में। कृपया हमें वो सारी चीजें याद करके बताएं, क्योंकि उससे आपके केस को हेल्प होने वाली है। जब आपका ग्रीन कार्ड की स्टेज आएगी तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। बहुत लंबे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं उसमें, और ये आपको चीजें हम खुलकर यहाँ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि जो चीजें पर्दे के पीछे हो रही हैं, आप जब हमारे क्लाइंट बनते हैं और वो चीजें होती हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, तो आपसे ऐसी गलतियां हमसे बात करते समय ना हो पाए। बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह आपने समझाया सौम्या जी, और हमने हेलेन से ये भी पूछा था कि इस वक़्त बताने की कितनी ज़रूरत है? यानी कि इस वक़्त टी वीज़ा के वक़्त साथ इसके साथ फ़ाइल करने के लिए 192 अभी क्यों सारी चीज़ें इस वेवर में आनी चाहिए? वो इसलिए हेलेन ने ये समझाया था कि आप ये सोचें कि आपने हमें 3 चीज़ें बताई। मैं कागज़ात के बगैर आई थी, मैं बॉर्डर पे पकड़ी गई और मैंने एक दफ़ा शॉपलिफ्टिंग की, यानी कि मैंने दुकान से कोई चीज़ छीन के मैं ले गई, ठीक है? तो आपने हमें 3 चीज़ें बताई, हमने वो 3 चीज़ें फ़ॉर्म में लिख लीं। लेकिन आप या तो भूल गए या तो आप डर की वजह से आपने हमें नहीं बताया कि 4-5 और चीज़ें भी थीं जो मैंने की, जो गुनाह मैंने किए। तो सरकार ने जब आपकी टी वीज़ा की एप्लीकेशन पढ़ी, तो उन्होंने तो अपनी बैकग्राउंड चेक की हुई है, आपके रिकॉर्ड्स चेक किए हुए हैं कि उन उन वो क्या जानते हैं आपके बारे में। तो वो उन्होंने देखी कि इस फॉर्म में तो सिर्फ़ 3 चीज़ें लिखी हुई हैं और हमें तो 4-5 और चीज़ों का मालूम है कि इस एप्लीकेंट ने क्या किया। तो फिर वो नहीं माफ़ करना चाहेंगे, क्योंकि वो फॉर्म पूरी तरह सच्चाई से सारी चीज़ें नहीं बताई गईं। तो यानी कि आप हमें सारी चीज़ें इस वक़्त बताएँ, ताकि हम सारी चीज़ें फॉर्म में इस वक़्त लिख सकते हैं, ताकि फिर आपको वो ज़्यादा वो उनके लिए फिर
ज़्यादा आसानी होगी हुकूमत को ज़्यादा आसानी होगी माफ़ करना, क्योंकि आपने सच्चाई से सारी चीज़ें बताई। आप फ्रॉड नहीं कर रहे गवर्नमेंट के साथ, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप चीज़ें छुपा नहीं रहे उनसे। तो इसीलिए आप इस वक़्त जब हम आपकी एप्लीकेशन तैयार कर रहे होते हैं, तो हम आपके लिए आपके से रिकॉर्ड्स पूछते हैं, आपसे सारे जो ट्रैफ़िक टिकट्स छोटी-छोटी चीज़ें या बड़ी-बड़ी चीज़ें कि आप पकड़े गए, डिटेंशन में थे, आपसे DUI, DWI हुआ, जो भी हुआ, आप ज़रूर हमें बताएँ और वो रिकॉर्ड्स हम आपसे माँगेंगे या ऑर्डर करेंगे आपके लिए। So Helen, we're going to move on to this green box we see here. Soumya ji explained so nicely about why honesty is so important, and why it's so important to put everything into the waiver that we can remember. So can you give us just a few examples, for example, the things that we ask for? Sure. So what we're looking for, you mean what we're asking for related to what may actually end up on the I-192 form Yes, the eventually? the Sure. questions Yeah. that we ask from our clients. Yeah. Sure. So some of them relate to what happened to you at the US border. So if somebody came in through Canada or they came in through Mexico, it may be that they were allowed entry into the United States. Um, but many times it would be that a person was arrested at the border coming in, walking across. So we're trying to figure out if they were given an interview to possibly seek asylum, if different applications were filed while they were detained at the border, what paperwork might have been given to them. We're asking questions to see how we can try to figure out what are we going to list correctly on the application related to immigration history, but we're also looking for things like what were there lies that happened to the immigration officials, right? Did somebody give something incorrect? And was it the kind of thing that would have been, material or really important to how we then later on need to present the case to immigration and request a waiver? Um, we also are looking for things like misrepresentation. So, for example, if someone was untruthful with the government when they applied for a tourist visa, maybe they didn't tell the truth about how their spouse was in the United States when they were seeking a tourist visa. The tourist visa was denied. Later on, they came across the border walking. Well, maybe they weren't caught coming across, so it's not a detention question, but we're needing to list out information about prior misrepresentation that happened maybe at the US Embassy in Mumbai or consulate in Mumbai before they ever came to America. And we're also looking for past offenses, even if a person wasn't caught. So that could be something like, for example, if a person was forced to carry drugs across the border, like the smugglers made them do it. Well, I need that information because being forced to do that for human traffickers is being a victim of human trafficking. So that's relevant to the Chivisa case. But also, we want to make sure that we request a waiver or forgiveness for that offense, or try to at least explain to immigration that it was done under duress, saying that maybe they don't need that waiver because it wasn't something that they did willfully, but rather they had no choice in the matter. So those are just three examples of things we might be looking for, but we're looking for all manner of offenses, whether it's an immigration violation, misrepresentation, or criminal history. तो सच्चाई से सारी बातें बताने का क्या मतलब है? इसको यहाँ विस्तार से हेलन ने समझाया है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको विस्तार से बताऊँ कि वो कौन-से सवाल हैं जो आपसे हम पूछते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं जो हम जानना चाहते हैं। पहली चीज़ जो आपको समझाई गई वो ये है कि अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वहाँ पर कि क्या आपको गिरफ्तार किया गया था? क्या आपको डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया था? क्या आपसे वहाँ किसी ने ऐसे सवाल पूछे थे और आपने वहाँ कोई झूठ बोला था? या आपको डिटेंशन सेंटर में जब रखा गया था तो वहाँ पर आपके जैसे और भी लोग थे, उन्होंने आपको वहाँ कोई कहानी सुनाने के लिए बोला था? या फिर आपको आपके एजेंट ने कुछ कहानी सुना के भेजा था जो कि आपने वहाँ बता दी? ये सारे सवाल आपसे हम यूएस बॉर्डर के बारे में पूछते हैं। जितनी बार भी वो हादसा आपके साथ हुआ, अगर आपको 4 दिन के लिए रखा गया, आप एक बार को आपको बाहर निकाला गया, आपको वापस लाया गया, आपके साथ और कौन लोग थे, क्या-क्या शामिल था, क्या आपको कोई अ, बस्ते लेकर के बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बोला गया जिसमें कि शायद ड्रग्स हो सकते हैं। उस तरह की चीज़ें हैं जो तो एक छोटे-छोटे सवाल जो लगते हैं आपको, वो एक्चुअली आपके केस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं।
तो पहली चीज तो हो गई ये सारी स्थितियां जो कि बॉर्डर क्रॉस करते समय आती हैं। दूसरी चीज हुई कि क्या आपने कभी सरकार से झूठ बोला है? अब ये एक ऐसा सवाल है जिसके दायरे में बहुत सारी बातें होती हैं जो आप अक्सर हमें बताते हैं कि मुझे पता था कि मेरा पति यहाँ पर है अमेरिका में, जब मैं वीजा लेने के लिए गई थी, लेकिन मैंने सरकार से झूठ बोला, मैंने नहीं बताया उनको। और यह आपके लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन आपके केस के लिए ये बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि इसी से जुड़ा है आपका इमिग्रेशन का मामला। सरकार को पता है कि आपके पति या आपके रिश्तेदार या आपके माता पिता, आपके भाई बहन इस देश में हैं, और अगर आप उनसे झूठ बोल रहे हैं और जो आपने हमें भी नहीं बताया है, उससे आपके केस में वो परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जिसको आप 192 वेवर और 192 मिस रिप्रेजेंटेशन या 192 इनएडमिसिबिलिटी के नाम से यहाँ जाना जा रहा है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये परेशानियां कहाँ कहाँ आपको पैदा हो सकती हैं अगर आप पूरी सच्चाई से बातें हमें नहीं बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप टूरिस्ट वीजा लेने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं और उसके बाद आप भूल जाते हैं। मान लीजिए आपने 7 बार कोशिश की और आपने हमें सिर्फ 2 के बारे में बताया, तो आपसे हम पूछेंगे कि आप हमें याद कीजिए और बताइए हमें हर डेट पर उस अपॉइंटमेंट में कौन सी काउंसलेट में किस ऑफिसर ने आपसे क्या पूछा था, क्या कोई वजह बताई थी, क्या आपके पास कोई इंटरप्रेटर था। इस तरह के सवाल आपसे हम पूछेंगे और ये सारी चीजें आती हैं सरकार से झूठ बोलने के दायरे में। आखिरी चीज है कि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि गुनाह तो है सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर, लेकिन आप उसमें पकड़े नहीं गए। और ये एक ऐसी ग्रे एरिया है जिसकी आपको लगता है कि मैं तो पकड़ा ही नहीं गया। तो एक ऐसी बात हुई कि चोर ने चोरी की और वो पकड़ा नहीं गया, तो उसको लग रहा है कि उसने चोरी ही नहीं की, लेकिन वो सच नहीं है। वो सारे गुनाह जो आपकी नजर से आपको लगता है कि झूठ तो बोल दिया मैंने और मैं पकड़ा भी नहीं गया, तो मेरा काम तो हो गया। लेकिन जब आप आगे जाएंगे, सरकार के पास वो सारी जानकारी होगी, किसी ना किसी पॉइंट पर आकर के आप जरूर पकड़े जाएंगे, और उस समय वो परेशानी सिर्फ आपकी नहीं होती, वो परेशानी हमारी भी होती है। तो एक साझी समस्या हो जाती है। इसलिए जैसा तैयबा ने आपको बताया पहले कि हमें सारा सच उस समय जानना होता है जिस समय आपका केस हम फाइल कर रहे होते हैं, हम लिख रहे होते हैं, और I-192 का जो जिम्मेदारी है, क्योंकि उसमें एक सर्टिफिकेट भी होता है कि ये सारी चीजें आपने अपनी स्वेच्छा से हमें बताई हैं। और ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसा कि आपको हम बार बार बता रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत आसानी से सरकार माफ कर सकती है। सो कृपया आप ना घबराएं और हमें आप सारी चीजें बताएं। तैयबा जी, मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो प्लीज बताएं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक समझाया। एक बात मैं फिर से बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि कभी-कभी जो लोग जिनके खिलाफ ट्रैफ़िकिंग हुई है, जिनके साथ ज़ुल्म हुआ है ये ट्रैफ़िकिंग का, तो जो ज़ालिम है, यानी कि जिसने किया आपके खिलाफ ये ट्रैफ़िकिंग की, उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें करवाईं जो आप शायद ना करना चाहते थे। आपके बैग्स में, जैसे आपने बताया, आपके बैग्स में ड्रग्स डाल के आपको भेजा बॉर्डर के साथ, कि जाके ये ड्रग्स फलाने के हाथ में पकड़ा देना, या पैसे फलाने के हाथ में पकड़ा देना, और आपको पता नहीं है कि वो किस चीज़ के पैसे हैं, आपको पता नहीं है कि वो आपके बैग में उन्होंने क्या डाला। या कभी-कभी कोई शायद आपको डरा के, धमकी दे के कहता है कि इस दुकान में जाओ और वो चीज़ छीन के लाओ, मेरे लिए सिगरेट्स छीन के लाओ वहाँ से। तो यानी कि आपने ये चीज़ें की, और हाँ, वो गुनाह थे, वो अमेरिका के हकूक़ के मुताबिक क्राइम्स थे, लेकिन वो आपने अपने दिल में से तो नहीं वो चीज़ें की, मतलब आपने की, लेकिन आपको मजबूरी में डाल के, आपको डर में डाल के, आपके खिलाफ जो ज़ुल्म हुआ, वो उस वजह से आपने ये चीज़ें की। तो और आप पकड़े नहीं गए, आप निकल गए उस चीज़ में से। वो चीज़ें हमें फिर भी आप बताएँ, क्योंकि ये आपका ट्रैफ़िकिंग केस जो टी केस है, वो उस चीज़ का हिस्सा बन सकता है। और हम फिर भी इसको वेवर में डालते हैं, 192 एप्लीकेशन में डालते हैं, और टी वीज़ा का भी वो हिस्सा है, हमें जानना चाहिए उस वजह से। थैंक यू सो मच। जी, सौम्या जी, आपने और कुछ बताना था इसके बारे में? मुझे बस खाली एक चीज यहाँ पर ऐड करनी थी कि डर आपके टी वीसा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और शायद आप उसको उस नजरिए से नहीं देख सकते, लेकिन हम आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि आपने डर की वजह से, जब आप
किसी के भी गिरफ्त में थे, चाहे आपको जबरदस्ती रखा गया था, आपसे कोई काम, जैसा आपने बताया कि जाके मेरे लिए कुछ चोरी करके लेके आओ, जाके मेरे लिए ये झूठ बोल के आओ, जाके मेरे लिए ये कहानी सुना दो, ये सारी चीजें आपकी टी वीजा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। कृपया बिना किसी डर के सारी सच्चाई हमें बताएं। जैसा कि आपको हम बार बार बता रहे हैं कि ये सारी चीजें गोपनीय हैं, आपके केस को अच्छा बनाने के लिए एक प्रयास है, और इसीलिए आपको ये सारी चीजें हम यहाँ पर बताना जरूरी समझते हैं। Thank you so much. That was a lovely transition. Helen, Somya reminded our listeners that, a lot of things that they have done in the past may have been done because of fear, right? Fear of your trafficker, fear of many different kinds of harm that they may suffer. But please do not let that fear stop you from telling your attorney the truth. We are, a safe place. This is confidential. And this is a definitely time to put that fear aside and tell us of things that have happened to you in the past. So we're going to move on to reporting. This is something that is essential for the T visa application. We must provide a law enforcement report to inform a government agency of the trafficking. It is similar to U visas, but not the same in that we do not need a certification signature, and we'll come to that in a minute. But this can be something that causes a lot of worry for people who are looking for a T visa. They don't necessarily think it is safe to tell the government where they are and who they are and what happened to them. But it's essential to the T visa case, and it's something that we do very carefully. So we look forward to learning from you, Helen. And I'll just ask Somya to translate this little introduction for us first. रिपोर्टिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिससे सबको डर लगता है कि आप किसको बताओगे, क्यों बताना जरूरी है, क्या कारण है बताने का। तो यहाँ पर ये उसका एक इंट्रोडक्शन है, और हम यहाँ पर हेलन हमें बताएंगी इसके बारे में और ज्यादा। रिपोर्टिंग एक ऐसा शब्द है जिससे कि आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सो ये खाली पुलिस को रिपोर्टिंग नहीं होती है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में बहुत सारे और डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि हमें ये जो भी आपके साथ हुआ है, वो क्राइम या वो गुनाह, वो जो आपके साथ हुआ है, जो लोगों के खिलाफ आप बताना चाहते हैं, उनको सरकार को हमें बताना पड़ता है। और सरकार के अलग अलग विभाग होते हैं, जहां आप रहते हैं उसके आधार पर कि हम कौन से विभाग को बताएंगे, वो है इस पार्ट में जो कि आपको बताया जाएगा कि रिपोर्टिंग क्या होती है, किस तरह से वो रिपोर्टिंग की जाती है, क्यों वो करना जरूरी है। So, Helen, I'm going to turn it over to you to introduce us. I'll first, though, just inform our listeners of some very common words that they'll hear, which is law enforcement agency, or LEA, which is a part of the local city or county, state, or federal government that has the power to investigate the trafficking crime. And reporting just means telling a law enforcement agency what happened. Okay, so then what do we do when we are reporting? As Tama said, we're telling a law enforcement agency that our client has been a victim of human trafficking. Now, in our last section, we talked about how we have confidentiality in our consultations. So a person may have been a victim of trafficking. They may have immigration or criminal history that is problematic. When we talk about applying for the waiver or getting forgiveness for that history, we're telling our client that that's an option, but they don't have to apply for a T visa. They can end the consultation with us and decide not to move forward, not to seek a waiver, and they can also decide not to report their victimization of human trafficking. Okay. Now, with children who are minors, there are certain exceptions when they're victims of crime, which is a little outside of what we can address to today. But in the vast majority of cases, we're talking to adults who have been a victim of a crime. And so while this section is going to talk about reporting to law enforcement and how we need to be able to tell an agency that a client was a victim of trafficking, we only do that and only need to do that if the client actually decides to retain us to move forward with filing for the T visa.
And we will prepare a very careful victim statement that ethically and completely explains what has happened to them before we move forward with actually making the law enforcement report. तो ये जो शब्द है यहाँ पर जो आ रहा है जिसको कि हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या LEA बोलते हैं, ये जैसा कि आपको हमने पिछले भाग में बताया था कि जब आपका हमारे साथ कंसल्टेशन होता है, जब आपसे हम सारे सवाल पूछ लेते हैं और उसके बाद आपका ये डिसीजन होता है कि रिपोर्टिंग में आप क्या करेंगे, ये उस भाग को यहाँ पर समझाया जा रहा है। हमारा फर्ज है और आपके टी वीजा का एक हिस्सा होता है, बड़ा भाग होता है, जहाँ पर हमें आपका जो लोकल सिटी है जहाँ आप रहते हैं, जिस काउंटी में आप रहते हैं, जिस राज्य में आप रहते हैं या केंद्र सरकार के लिए हम इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। उस गुनाह को जो आपके साथ किया गया है, जिसके आप शिकार है, जिसको कि हम लेबर ट्रैफिकिंग के नाम से जानते हैं, उसको हमें ये रिपोर्ट करना आवश्यक है, नियम है, कानून है उसकी वजह से। और ये हम तभी करेंगे जब आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जिसका मतलब है जब आपने हमें हायर कर लिया है वो काम करने के लिए और टी वीजा आपका आगे चलना चाहता है। चूंकि आपका जो कंसल्टेशन था वो कॉन्फिडेंशियल था, जिसका मतलब है कि आप हमसे इत्मीनान रख के, विश्वास रख के सारी बातें आप हमें बता सकते हैं। उसके बाद हम आपके साथ मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि हमें आपको आगे ले जाने के लिए कौन सी चीजें हमें चाहिए जो कि हमें आपके वेवर फॉर्म में डालनी है, और हमें कौन सी चीजें जो कि आप नहीं चाहते कि हम उसको किसी के साथ साझा करें। तो ये हमारा और आपका एक रिश्ता होता है जो कि आपको ये डिसाइड करने में सुकून देता है कि आप ये इत्मीनान रख के हमें सारी चीजें बता सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप किसी भी वजह से हमें हायर ना करना चाहें, तो आपके मन में ये डर या वहम अगर होता है कि हम फिर भी किसी को इसके बारे में बताएंगे, तो नहीं, उसका जवाब है कि वो हम कभी किसी को नहीं बताएंगे। जैसा कि आपको हम बता रहे हैं बार बार कि ये कानून है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है और इसका पालन बहुत सख्ती से हमारे ऑफिस में किया जाता है, तो वो हम कभी किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन जहां जहां हम बता सकते हैं वो ऑफिस को हम यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के नाम से जान रहे हैं। दूसरी चीज है कि हम उन एजेंसीज को आपकी ट्रैफिकिंग के बारे में बताते हैं जिनके पास ये पावर है कि वो आपके साथ हुए गए गुनाह को अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं या वो उसको आगे ले जाना चाहते हैं, और अगर मान लीजिए आपके साथ इतनी ज्यादती हुई है, आप भी चाहते हैं उसमें कि हाँ जी, मेरे साथ ये बुरा हुआ था और मैं चाहता हूं कि इस दोषी को सजा मिले, या मैं चाहता हूं कि इस दोषी के लिए आप कुछ करें, मैं इतना इसने मुझे पीड़ित किया है, प्रताड़ित किया है, तो हम ये आपकी सलाह, आपसे सुझाव लिए बिना या आपकी अनुमति लिए बिना कभी भी हम आगे नहीं भेज सकते। और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये कानून है, इसका सख्ती से पालन किया जाता है। तैयबा जी, प्लीज बताएं, कुछ रह गया हो तो। थैंक यू सो मच। जी, तो जैसे कि आपने समझाया, यानी कि लोग जो सुन रहे हैं ये वीडियोस, ये पार्ट 4, पहले 3 पार्ट्स हिस्से भी सुन लिए और ये समझ लिया कि हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल है। तो अब हम आगे आपकी बात बता रहे हैं, तो ये आप लॉयर लोग क्या कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात करते रहते हैं। तो यानी कि हेलेन जी ने ये समझाया कि ठीक है, आप हमें जो चीज़ बताते हैं वो कॉन्फिडेंशियल है। हम बाज़ार में जाके नहीं बताएँगे कि आपके साथ क्या हुआ, आपका नाम नहीं लेंगे कहीं और आपकी इजाज़त के बगैर। लेकिन अगर हम आपको ये समझाएँगे आपके कंसल्टेशन में कि अगर आप ये टी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये रिपोर्टिंग एक ज़रूरी हिस्सा है। तो यानी कि जो सारी चीज़ें आपने हमें बताई हैं, वो उस रिपोर्ट में जाएँगी और जो सारे पहले के क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वो वेवर में जाएँगे, यानी कि सारे जाएँगे। ये नहीं कि ये चीज़ छुपा दो, ये चीज़ नहीं बतानी, वो सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन में जानी चाहिए। लेकिन वो भी यानी कि आपका फ़ैसला है, आपने टीवीज़ हमारे साथ बात करके आप पूरी तरह समझ लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि मेरे क्या ऑप्शंस हैं, मैं आगे क्या कर सकती हूँ। तो फिर आपके हाथ में है ये फ़ैसला, आपने हमें हायर करना है, आपने ये टी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है या नहीं, और अगर नहीं तो फिर बात वहाँ बंद हो गई। और अगर आपने आगे जाके अप्लाई करना है तो फिर ये रिपोर्टिंग उस चीज़ का एक हिस्सा होता है। हेलेन जी ने एक छोटी-सी बात की थी कि कभी-कभी बच्चों के लिए, माइनर्स के लिए कोई-कोई क्राइम्स होते हैं उन बच्चों के खिलाफ जो हमें रिपोर्ट करना लाज़मी है हुकूमत की, मतलब हुकूमत की वजह से, कानून की वजह से। वो इस वीडियो में हम पूरी तरह नहीं समझा सकते, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, हमारे साथ कंसल्टेशन जो बुक करते हैं, वो एडल्ट्स होते हैं, वो बड़े होते हैं। तो उनके लिए यानी फिर उनका
फैसला खुद वो उनके हाथ में है कि मैंने टी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है कि नहीं, मैंने रिपोर्ट करना है कि नहीं। फेबर जी, आई थिंक यहाँ पर ये बताना उचित रहेगा, चूंकि बच्चों के बारे में हमने ये बात की है और हम सारी चीजें यहाँ नहीं बता रहे, हम इतना जरूर बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को। अगर आपके बच्चे के साथ इस देश में या इस देश के अलावा किसी भी देश में ऐसा कुछ हुआ है जो शर्मनाक है, जो कि आप हमें बताना चाहते हैं, तो चाहे आप उस बच्चे के माता पिता हैं, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और इस वीडियो में हम उस सिलसिले को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपसे हम वन ऑन वन उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहेंगे। Thank you so much. And Helen, as a transition point, Soumya ji also explained that, uh, as you had mentioned about some crimes against minors must be reported. We're not going to go into it in detail in this video, but Soumya also mentioned that for people who are our clients and are consulting for themselves, that if something difficult or dangerous has happened to their child, that they should include that in the kinds of things that they talk to us about, because we may have more questions about it moving forward. So एक चीज़ हेलन जी ने ये बोली थी कि पहली चीज़ हम ये करते हैं रिपोर्ट लिखने से पहले, लॉ इन्फोर्समेंट को रिपोर्ट भेजने से पहले पहली चीज़ हम ये करते हैं कि एक पूरा विक्टिम स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि आपसे सब कुछ समझ के कि आपके साथ क्या हुआ वो हम सब कुछ लिख के पहले वो होता है, फिर उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाती है. Didn't want to leave that out. So Helen, we're going to move on to a little bit more about reporting for visa purposes. How do we choose where to report after we create that victim statement? How do we choose which agency we're going to tell about this? And then what is the victim, what can they expect? What happens next after that report is sent? So we take a client-centered approach to the work that we're doing. We have clients who urgently wish to report so that hopefully a prosecution will take place against their trafficker. They're looking for things like stopping sexual assault from happening to other people, for trying to essentially put someone behind bars so that they will stop committing crimes to others. But many times we also have clients where this happened to a very long time ago. Um, we may not have witnesses, or we may not have video or text messages or DNA. We may not have the kinds of things that would make it easier for a agency to really press a criminal charge or even find the person who did these bad things. And many times we also have clients who would like to immigrate. They would like to legalize their immigration status, but they're absolutely terrified of the law enforcement process. And frankly, they've been through enough as it is. And so we try to balance those concerns. So we have some clients where we're going to do very active reporting, really pushing an agency to try to get them to create an incident report, to move an investigation forward, to listen to what happened to our client, to hopefully press charges. And then we also have many cases where our goal is to simply make an administrative report. It might just be an email to the Department of Labor, letting them know that our client is in a safe place, right? Our survivor is safe currently, not in immediate danger. We let them know that the trafficking took place, and that, it was a certain period of time ago, typically. And then we may let them know that the reason that we are reporting is to comply with the visa regulations, and that we understand that their resources are limited and they may not be able to fully investigate this outside of receiving our email or our report, and essentially taking that information and keeping it in case it may have some future purpose. So I understand that a lot of times, the authorities may not want to investigate, and we're trying to push them to do it. And other times our clients really don't want an investigation, but we're pushing them to say, let us at least report this administratively, do the absolute bare minimum for that meets the regulation requirement, so we can just move forward and get them the real justice that they need, which is immigration status, access to mental health services, and access to the justice system for the future.
Not every client may have to speak with law enforcement. Many times we do reports, as you can see in this little green box here. We may do a report, like I said, maybe to the Department of Labor or another agency, and they may not decide to do an interview. But if they do want an interview, I often tell clients, they may ask less questions than we do. Like, we may have had hours of conversations with our client about what happened. A law enforcement or Department of Labor interview might be an hour or two. It's typically 2 hours. They cover what ground they can. Oftentimes, they're not able to move forward with something that's actionable, and that's understandable. Other times, they do have other questions. But if somebody does have to talk with law enforcement, then we're going to have that conversation with our client. We'll help prepare them legally and emotionally for that interview. And then if they feel that they still cannot go forward with the interview, I may ask the Labor Department or other agency if we can just put a pause on this while our client continues to attend therapy, to see if maybe down the road they feel more comfortable having that conversation. So there are places to put the brakes on the cooperation process that, again, are trauma-informed brakes and is client-centered. So it's a lot to interpret. I know there's a couple of boxes still to cover, but maybe we could start there and I can address a little bit more. थैंक यू हेलन। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो अलग-अलग तरीके हैं समझाने के इस चीज को कि हम किस तरह से ये निर्णय लेते हैं कि इस जो आपके साथ लेबर ट्रैफिकिंग हुई है, जो आपको परेशानी हुई है, उसको हमें कहाँ रिपोर्ट करना है। तो पहली चीज तो ये है कि हमारी जो अप्रोच है पूरी टीम की वो बहुत क्लाइंट ओरिएंटेड, क्लाइंट सेंटर्ड, और ये वर्ड इसलिए आता है यहाँ पर कि हमारे लिए हमारे क्लाइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भावनात्मक तौर पर, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके अच्छे जीवन के लिए। तीन ही चीजों को ध्यान में रखने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को आपका केस हमें रिपोर्ट करना है। अब वहां पर जब हम ये रिपोर्ट करते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज जो है वो आसान वाली है कि आपकी उम्र कितनी थी जब आपके साथ ये सब कुछ हुआ था। तो आपकी उम्र सबसे पहली चीज आती है कि हो सकता है ये जो लेबर ट्रैफिकिंग है आपके साथ 20 साल पहले हुई हो और 20 साल में आपकी जिंदगी चलती रही और आपने कभी किसी वकील की मदद नहीं ली। अब आपकी उम्र ऐसी है कि आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, आप बात करने में थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करते हैं, सारे सवालों के जवाब देने में आप अभी आप ठीक है, मतलब आपको उतना ज्यादा परेशानी नहीं है। तो आपकी जो उम्र है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरी चीज होती है कि वो जो हादसा हुआ था, जो लेबर ट्रैफिकिंग हुई थी, कहाँ हुआ था। वो आपको बॉर्डर क्रॉस करते समय हुआ था, आपको हिंदुस्तान से यहाँ आते समय हुआ था, या जिस देश से भी आप यहाँ आते हैं उस देश से मार्ग में हुआ था आपके साथ में। आप सुरक्षित थे या नहीं थे? क्या आप किसी ने आपके सर पर पिस्तौल रखी थी? किसी ने आपको जान से मार ही दिया था या आप उससे छूट के भाग गए थे? उस तरह की चीज़ें हैं। तो आपकी सुरक्षा कितनी ज़्यादा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तीसरी चीज़ है कि आप कितनी आसानी से अब भी उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आज मान लीजिए 20 साल के बाद भी आपसे कोई उस चीज़ के बारे में बात करे जो आपको उस समय असहज बना देती थी या जिसकी वजह से आप ट्रॉमा में थे। ट्रॉमा का मतलब होता है कि आप इतने ज़्यादा पीड़ित थे कि आप सोच नहीं सकते थे ठीक से, आप रात को सो नहीं सकते थे, आप गुस्से में रहते थे, आप किसी से नॉर्मली बात नहीं कर सकते थे। और आज 20 साल के बाद आपको लगता है हाँ ठीक है, अभी मैं कर सकता हूँ, अभी मैं समझता हूँ। आपका वो गुस्सा कम हो गया है, आपका चिड़चिड़ापन कम हो गया है। तो अगली चीज़ ये आती है कि आप कितनी आसानी से हमसे उस सवाल के जवाब दे सकते हैं। अगर अभी भी आपको वो ट्रॉमा है, जिसका मतलब है अभी भी आपको उसके बारे में अवॉइडेंस है। आप कोशिश करते हैं कि उससे कोई मेरे से छेड़े ना उसके बारे में, कोई मेरे से बात ना करे उसके बारे में। मैं क्यों बताऊँ तुमको? अगर ऐसी स्थिति में आप आज भी हैं, ये भी एक अहम मुद्दा हो सकता है कि हम कहाँ रिपोर्ट करेंगे। आखिरी चीज़ है कि अक्सर ये डर होता है हमारे क्लाइंट्स को, अगर आपने रिपोर्ट किया, क्या वो इसके ऊपर आगे कार्यवाही करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या क्या मुझसे कोई बात करेगा? इसके 2 रास्ते हैं।
कई बार वो आपसे कुछ भी नहीं पूछते, वो सिर्फ हमारी ईमेल देखते हैं, हमने केस रिपोर्ट कर दिया उतना देखते हैं और उसके आगे कोई कार्यवाही नहीं होती। वो तो वहीं पर पूर्ण विराम लग गया और आपका केस आगे चलता रहा। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जब आपकी रिपोर्टिंग होती है टी वीजा के लिए, अगर दूसरा वाला रास्ता लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अपनाए, जिसका मतलब है कि अगर वो आपके मामले में कार्रवाई करना चाहें, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप हमें चाहते हैं कि आपकी हम मदद करें, तो हम आपको वो मदद भी ज़रूर देंगे। कभी-कभी अथॉरिटीज़ हमारे पास आती हैं और वो हमसे बोलते हैं कि हमें आपके क्लाइंट के साथ इंटरव्यू करना है। और मान लीजिए आपकी स्थिति ऐसी नहीं होती उस समय, आपको मानसिक दबाव है, आप अभी भी उस चीज़ के बारे में बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे बात करने के लिए, तो हम इतनी मदद कर सकते हैं कि हम अथॉरिटीज़ से बोल सकते हैं कि अभी हमारे क्लाइंट को थोड़ा और समय चाहिए, क्योंकि वो थेरेपी में जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी असहज महसूस कर रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोई मेडिकल कंडीशन है उनको ऐसी, जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन वो बहुत कम मामलों में होता है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके लिए अथॉरिटीज़ कोई भी इन्वेस्टिगेशन आपके मामले में नहीं करती, जो कि आपको हमने पहले इससे समझाया था। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, आपका हाथ पकड़ के हम उस प्रोसेस में भी चलने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सौम्या जी। और हेलन जी ने ये भी समझाया था कि जब हम सोचते हैं कि हम किस एजेंसी में ये रिपोर्ट भेजेंगे, किस ऑफिस में हम ये रिपोर्ट भेजेंगे, तो हम अपने क्लाइंट की बात भी सुनते हैं कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप कोर्ट में जाके सबके सामने बता दें कि आपके साथ क्या हुआ? क्या आप चाहते हैं कि जिसने आपके साथ ज़ुल्म किया वो अरेस्ट हो जाए? और आप उस बंदे को रोकें कि वो और किसी के साथ ये चीज़ ना करें जो आपके साथ हुई। क्या आप ये चाहते हैं? या आप चाहते हैं कि नहीं, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं नहीं बताना चाहती किसी को, मैं खुले कोर्ट में नहीं बताना चाहती, मैं सिर्फ़ एक एजेंसी को बताना चाहती हूँ कि वो रिपोर्ट मेरी पढ़ लें और रख लें अपने सामने, और अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन खोली, मेरे साथ इंटरव्यू करना हुआ या नहीं नहीं करना हुआ, लेकिन मैं कोर्ट में नहीं जाना चाहती। तो हम फिर इस तरह आपसे समझ के, आपसे सुन के कि आप क्या चाहते हैं, तो फिर हम ये चीज़ें भी देखते हैं कि फिर हमने रिपोर्ट कहाँ भेजी। कभी-कभी लोग चाहते हैं कि मैं कोर्ट में जाना चाहती हूँ, कभी कहते हैं कि नहीं, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। ठीक है, समझ लिया कि रिपोर्ट एक लाज़मी हिस्सा है, ज़रूरी बात है टी वीज़ा के एप्लीकेशन में, तो फिर हम मिसाल के तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में भेज देते हैं कि इस फैमिली के साथ इस एप्लीकेशन के लिए लेबर ट्रैफ़िकिंग हुई, लेकिन अभी वो लोग ठीक हैं, वो अभी इस वक़्त ख़तरे में नहीं हैं, वो निकल गए हैं उस ख़तरे में से, उस काम में से जहाँ उनके साथ ये गुनाह हुए थे, ये ज़ुल्म हुआ था। तो इसलिए हम सिर्फ़ ये रिपोर्ट लिख रहे हैं आपको बताने के लिए, हुकूमत को बताने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि ये ट्रैफ़िकिंग हुई। और फिर हम वो लिख भी देते हैं कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन इस वक़्त नहीं खोल सकते, तो कोई बात नहीं, हमने सिर्फ़ आपको बताना था कि इन लोगों के साथ क्या हुआ। तो यानी कि हम टी वीज़ा का जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एप्लीकेशन के लिए चीज़ें लाज़मी होती हैं, वो हम करते हैं। यानी कि हम रिपोर्ट लिखते हैं और हम रिपोर्ट भेजते हैं। लेकिन हम चुन-चुन के सोचते हैं कि हम किस एजेंसी में, किस ऑफ़िस में ये ख़त भेजेंगे रिपोर्ट का। और वो उस मामले में हम अपनी नॉलेज भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमने सारे क्लाइंट्स की मदद की है, और हम क्लाइंट से भी सुनते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस रिपोर्ट के साथ। ठीक है ना सौम्या जी? जी, और यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है तैयबा जी कि जैसा कि हेलन ने बताया कि आपके टी वीज़ा को फ़ाइल करने के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आपके जो केस के मामले में है, वो कार्यवाही की जाए। बिल्कुल ठीक। तो ये जो नियम और कानून के मुताबिक जो टी वीज़ा रेगुलेशंस आपने बताए, उसके आधार पर आपको बता रहे हैं कि ये बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये ऑप्शनल है, अगर सरकार चाहे तो इन्वेस्टिगेट करे, अगर सरकार ना चाहे तो इन्वेस्टिगेट ना करे। हमारा काम सिर्फ उनको बताना है, आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अगर आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और आप ये चाहते हैं कि नहीं जी, मुझे तो किसी को जेल में भिजवाना है क्योंकि उसने इतना बुरा किया था, या अगर कोई सेक्स असॉल्ट जैसा कोई मामला है कि आप नहीं चाहते कि आपके जैसे किसी और के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि अगर जो गुनाह करने वाले हैं वो अभी भी ऐसे लोगों को शिकार बना रहे हैं जो कि उनके शिकार आसानी से बन जाएंगे,
लिए और आप चाहते हैं कि आप कुछ करें उनके लिए, तो ज़रूर हम उसके साथ काम करते हैं, आपकी इजाज़त के साथ में, कि आप चाहते हैं अगर तो हम फिर आगे उसको एक दूसरे दिशा में लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझाया, and that was such a perfect blend onto the next section. So, Helen, Soumya ji very correctly reminded us that it is not required for a successful T visa that the law enforcement agency conduct an investigation into the trafficking after it is reported. And so now you're going to lead us through a series of slides, and we'll stop after each one to discuss it in our language. That there are a lot of misunderstandings about what happens after we report. And so you're going to lead us through explaining some of those frequently misunderstood situations about trafficking investigation. Thank you so much. And I know this is a challenging topic. Like again, when we started off, I said this is one we talk about all the time. So it is quite possible that the person who abused our client has disappeared, has been deported, has left the country. Maybe they're somewhere still around, but our client doesn't really know where they are exactly. And, if you're reporting a crime where you expect an arrest, I can see why you'd be really nervous about not knowing the location of the abuser. Um, but with T visa cases and reporting to trafficking, we can still make that report. Like I said, the email to the Department of Labor or a letter to the FBI or some other way of reporting. And we can still do it even though they have left the jurisdiction, even if they're not in the country, even if they have died. Even if they have died, we can still report. Why is that? Because the fact that the trafficker has gone away or died doesn't change that our client was a victim. And law enforcement can still learn from victimization patterns how to prevent crime or catch it in the future, in theory, by interviewing a client. Or if they choose not to interview our client, or if the law enforcement agency is very interested but knows there's really nothing they can do about it because there's no one to catch at this point, we can still have them accept that report, have our client tell their story, or if the client isn't having it in an interview, we tell that story in typically a one-page, very short letter or email that explains what had happened to them. And then we move forward with preparing the rest of the T visa application and filing. So I get this question even from attorneys, and I did just want to be clear that even if the person who victimized you has disappeared or died, our office most of the time is going to still want to move forward with the T visa case. We report dead or disappeared traffickers all the time. So let's cover that one, and then we'll go into the next bullet. तो अगली चीज़ है कि जो आपके सारे केसेस हैं, जो सारे मामले हैं और उनका क्या सबका इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है? या उनको हम किस तरह से आगे चलाते हैं जब आपका केस हम हैंडल कर रहे होते हैं? सो यहाँ पर ये बात बतानी ज़रूरी है कि सारे केसेस या सारे मामले बिल्कुल इन्वेस्टिगेट नहीं होते हैं और ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। मतलब ये बहुत आम बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा तो कुछ परेशानी होने वाली है। बिल्कुल नहीं ऐसा है और ऐसा इसलिए होता है कि जो आपके साथ लेबर ट्रैफिकिंग कर रहे थे, कभी-कभी ऐसा है कि वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। अगर हमने उनकी रिपोर्ट भी लिखी है, हमने उनको आगे भेज भी दिया है, उसके बाद भी उनको ढूँढना मुश्किल है कि वो थे अभी तक और अभी कहाँ चले गए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कई बार वो काफ़ी समय निकल गया होता है, उनका कुछ अता-पता नहीं होता, कहाँ उनको ढूँढना है वो नहीं पता होता। कभी-कभी कुछ लोग इस दुनिया से ही चले जाते हैं, इतना समय गुज़र जाता है या कोई आकस्मिक कारण हो सकता है, कोई भी हेल्थ इश्यू हो सकता है और वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब जब वो इस दुनिया में ही नहीं है या वो मिल ही नहीं रहे हैं, तो उनका क्या करना है? उसका करना ये है कि आपको हमें फिर भी उनके बारे में बताना है और हमें फिर भी उनकी रिपोर्ट लिखनी है, जिससे कि ये डिपार्टमेंट डिसाइड कर सके, जो एजेंसी है जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये डिसाइड कर सके कि उनका क्या करना है। और ज़्यादातर ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन होने के जो चांसेस हैं, वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि अब जो
इंसान दुनिया में ही नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे? लेकिन हमें फिर भी वो रिपोर्ट लिखनी होती है क्योंकि वो आपका टी वीज़ा का मामला है। दूसरी चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सबूत नहीं है उनके खिलाफ कोई चार्जेस लाने के लिए, मतलब उनको गुनाहगार मानने के लिए या उनको दोषी करार देने के लिए वो जो गवाह चाहिए, जो सबूत चाहिए, वो है लेकिन उतने नहीं हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही की जाए या जो एजेंसी है वो उनके ऊपर कोई मुकदमा चलाए या उनको दोषी करार दिया जाए। लेकिन हमारा काम यहाँ खत्म नहीं होता। चाहे उनके खिलाफ हमें सबूत और गवाह ना मिले, हमें फिर भी उसको उस गुनाह को रिपोर्ट करना होता है जिससे कि आपका टी वीज़ा का केस हम आगे चला सकें। अ, और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास लोग नहीं हैं, स्टाफ नहीं है इतना कि वो उस मामले में कार्रवाई कर सकें, क्योंकि हर काम को करने के लिए लोग लगते हैं और बहुत सारा उसमें चीज़ें लगती हैं जो कि एक टीम में चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा रिपोर्ट करना वो एक ऐसा स्टेप है जिसकी कि वो बहुत सराहना करते हैं और वो सिर्फ़ हम एक ईमेल के ज़रिए उन तक पहुँचा देते हैं। वो एक छोटा-सा चिट्ठी होती है जो ईमेल के ज़रिए उन तक पहुँच जाती है। उनको ये पता लग जाता है कि फलां-फलां केस में फलां-फलां इंसान के साथ ऐसा-ऐसा हुआ था। अब ये इंसान जिसने ऐसा किया था इसके साथ, वो इस दुनिया में नहीं है। वो अगर दुनिया में कहीं है तो हमें मिल नहीं रहा और इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास ये इसकी जानकारी दी गई है। तो ये आपके केस के लिए फिर भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छा स्टेप है, अच्छा कदम है कि जब आपका हम टी वीज़ा फाइल करें तो आपको हम न्याय दिला सकें। क्योंकि आपको न्याय दिलाने के सिर्फ़ ये तरीका नहीं है कि आप दोषी को सज़ा दिलवाएँ या दोषी को जेल के पीछे पहुँचवा दें। एक तरीका ये भी है उनको अ, आपको राहत पहुँचाने का कि आपको हम न्याय दिलवा सकें कि आपका जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो मिल सके जो कि कानूनी रूप से संभव है। चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस जिसे हम कह रहे हैं कि आपराधिक मामले में चाहे उनको न्याय नहीं मिला, आपको न्याय नहीं मिला अगर आप चाहते थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो बहुत खराब इंसान है, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे तहस-नहस कर दिया, मेरा परिवार खराब हो गया। तो चूँकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो वो वाला न्याय आपको चाहे ना मिला हो, लेकिन आपके टी वीज़ा के ज़रिए आपको ये जो न्याय है, कानूनी सहायता जिसको हम कह रहे हैं टी वीज़ा के रूप में, वो आपको मिलाने में हम ज़रूर मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही सौम्या जी, बहुत शुक्रिया। और यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपने ये पहले समझाई कि चाहे वो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, चाहे वो लेबर ट्रैफ़िकिंग हुई, चाहे वो सेक्स ट्रैफ़िकिंग हुई, क्योंकि जैसे हमने पहले वीडियोज़ में समझा था, काफ़ी किस्म की ट्रैफ़िकिंग होती हैं। तो जिसने भी आपके साथ गलत काम किया, वो अगर अमेरिका में हैं या नहीं हैं, वो चाहे ज़िंदा हैं या मर गए हैं, हम फिर भी वो रिपोर्ट लिख सकते हैं और आपको टी वीज़ा हासिल हो सकता है उसके बाद। क्यों? ये कैसे हो सकता है कि चाहे वो जो ज़ालिम था वो मर भी गया, लेकिन फिर भी मेरा टी वीज़ा मिल सकता है, ये क्यों है? ये वजह इसलिए है कि जिस एजेंसी को हम वो रिपोर्ट लिख के भेजते हैं, वो फिर सीख सकते हैं, आपकी पूरी बात पढ़ के, आपकी पूरी बात समझ के वो फिर सीख सकते हैं कि क्या-क्या ज़ुल्म होते हैं लोगों के साथ और कैसे होते हैं, ताकि वो फिर आइंदा अगर आगे उनको कोई इस तरह की चीज़ नज़र आए, तो वो उस चीज़ को रोक सकते हैं, कोई अरेस्ट कर सकते हैं। तो यानी कि आपके साथ जो हुआ, वो और लोगों की का फ़ायदा होगा बाद में कि मैंने अपनी कहानी बता दी, ताकि फिर आगे किसी को इस तरह की चीज़ ना हो। तो वो एजेंसी सीख सकती है उसके मामले में, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन करें या ना करें, चाहे वो आपका इंटरव्यू लें या ना लें, लेकिन आपने रिपोर्ट कर दिया, हमारे हाथों में से आपने रिपोर्ट किया, तो फिर वो आगे किसी का फ़ायदा हो सकता है। So, Helen, Soumya ji did a great job. Actually, she went ahead and summarized what was in the bullets so that we can now proceed with you giving a little more explanation and then we'll interpret that as well. Okay, so let's say, for example, we do a report to the Department of Labor or to the FBI or to the local sheriff's office about somebody who wasn't paid consistently, wasn't paid on time, and that their employer said that they shouldn't complain because they could be deported. And so they kept working there for a long time and finally came to their breaking point and left the situation. And now, years later, we're reporting this to the Labor Department, Wage and Hour Crimes Division. Um,
so much time has passed, it's quite likely that there's not enough evidence of those late payments. Maybe they were made in cash, for example. We don't maybe have the concrete evidence that we need to try to have a charge pressed, right? So then it may be that the Labor Department or other agency just believes that it's outside of the time period that they can take action on it. They can't do a criminal investigation, but we still are doing the report of the crime and pursuing the T visa. Um, it can be that a statute of limitations has passed. It can be that the civil investigation period for a crime committed against our client may have passed. Uh, that's okay. We can still report and move forward with the T visa. Law enforcement may also just not have the resources or the capacity to investigate, which is that third bullet point, and they can still appreciate that we emailed them a report of what happened. Some of that is good relationship building, so they can trust us to know that we're going to report crimes to them. We're going to give them an idea of what kind of crimes are happening to our clients, right? So if they see a pattern of people from one country being victimized in a certain way, in their investigatory role, maybe next time they'll be helped in some way to ask questions in their interviews with people who are unrelated to our clients or their cases, because they'll have learned some patterns about how people of a particular nation are often victimized. So it's still a great thing to be able to report trafficking. It gets it off of our client's chest. They have a chance for their story to be told or sometimes to tell their story. We're still able to file for the T visa. We don't have to have law enforcement necessarily issue an incident report. These are not 911 calls. These are often for things that took place a very long time ago and are not emergency situations. And we're trying to get our clients some justice. And we could look at it as social justice or immigration justice, even if it's not criminal justice. Even if I can't get my client's money back, my role as an immigration attorney is really about doing the immigration part of it. And that's where that report of trafficking comes in, to just comply with the immigration regulation that has that requirement so we can move forward with applying for the T. जैसा कि आपने सुना अभी कि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को हम आपका केस रिपोर्ट कर रहे हैं और मान लीजिए कि आपको जब आपकी लेबर ट्रैफिकिंग हुई थी उस समय आपको जितना पैसा बताया गया था वो पैसा आपको मान लीजिए बहुत कम दिया गया था। आपको पैसा कैश में दिया गया था, आपको पैसा 2 महीने बाद दिया गया था, आपसे ऐसे भी काम करवाए गए थे जो कि आपको बताए नहीं गए थे और ये सारा का सारा लेबर ट्रैफिकिंग में आता है। ये लेबर ट्रैफिकिंग का पार्ट है। अब चूंकि इतना सारा समय गुजर गया, आपने कुछ नहीं किया क्योंकि आप अपनी जिंदगी जैसे तैसे जीते रहे और आपके मन में वो बातें दबी रह गईं कि ये मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। अब आपको मान लीजिए किसी ने बताया कि ये तो गलत बात थी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और अब आप कोई तरीका ढूंढ रहे हैं और आप ये मानना चाहते हैं कि मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि वो जो न्याय मिलने की एक मन में दबी हुई इच्छा होती है, वो सभी को होती है। हम सभी इंसान हैं और सभी को न्याय संगत व्यवहार मिलना चाहिए कानून के आधार पर। अब मान लीजिए जो आपका लेबर ट्रैफिकर था वो इस दुनिया में, जैसे हमने कहा, कारण किसी भी कारण से नहीं है। अब हमें उसका क्या करना है? अब हमने खाली वो रिपोर्ट कर दी और कई बार वो रिपोर्ट इसलिए भी की जाती है कि सिर्फ अगर मान लीजिए आपको न्याय नहीं मिला, आपको नहीं पता था 20 साल तक कि इसका कुछ हो सकता है। हो सकता है उस एजेंसी के पास ऐसे और कुछ मामले आए हों जिनको अभी 2 साल हुए हों, या किसी एक देश से आए हुए लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता हो कि वो शिकार बन जाते हों ऐसी चीजों के। चाहे वो एक देश से हों, चाहे वो 4 देशों से हों, लेकिन अक्सर जो लोग बाहर से आते हैं उनके साथ इस तरह की स्थितियां बन जाना बहुत आम बात होती है। तो ये सिर्फ आपको मदद नहीं करता हमारी रिपोर्टिंग, लेकिन ये हमारा उस डिपार्टमेंट के साथ एक रिश्ता भी अच्छा बनाता है कि अगर कोई चीज समाज में गलत हो रही है तो वो एक सामाजिक न्याय भी है कि मान लीजिए एक देश से आए हुए मान लीजिए 10 लोग हैं और आपने 10 लोगों के साथ ही ऐसा किया है। आपको लगता है ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमारा जो रोल है समाज में वो सिर्फ हमारे क्लाइंट्स के प्रति नहीं है, समाज के प्रति भी हमारा एक थोड़ा सा रोल होता है कि समाज में अगर कोई चीजें अनैतिक रूप से हो रही है, जो न्यायिक नहीं है, लोगों के साथ इंसाफ नहीं है, तो उसको भी हमें उनको बताना है कि इस चीज के बारे में आप थोड़ा संज्ञान लें।
तो ये जो डिपार्टमेंट है, मान लीजिए वो FBI है, शेरिफ का ऑफिस है, लोकल पुलिस डिपार्टमेंट है, या कोई सा भी और डिपार्टमेंट जो आपसे रिलेटेड था, तो वो अगर उन्हें पता ही नहीं है उसके बारे में कि लेबर ट्रैफिकिंग क्या होती है, तो ये मामला तो चलता रहेगा। आज एक के साथ हुआ, कल 4 के साथ होगा, और परसों परसों शायद 100 के साथ होगा। और जो गलत है, तो वो समाज में भी ये चीजें फैल रही हैं, जिसको कि रोकना हमारा सबका कर्तव्य है, साथ में मिलके एक टीम के तौर पर। तो ये जो आपकी रिपोर्ट है वो उस लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा उसका वजन होता है। चाहे सतही तौर पर आपको वो समझ में ना आए कि रिपोर्ट क्यों करना है, क्या होगा इसका, अब तो वो इंसान रहा भी नहीं। तो जैसा कि हेलन आपको बता रही हैं कि ये सिर्फ आपराधिक मामला नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जिससे आपके जैसे और भी लोगों को न्याय मिलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तैयबा जी, आपका सहयोग चाहिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा, और अगर मैंने नहीं, कुछ भूल गई हो। बिल्कुल ठीक। और ये आखिरी बात मैं ये बताऊंगी और फिर हम आगे चलेंगे, और वो ये है कि आपके साथ जो हुआ वो आपने हमें सच्चाई से बताया, हमने स्टेटमेंट लिख ली, और वो भी वही स्टेटमेंट आगे रिपोर्ट बनती है। मतलब उसको हम छोटा करके पूरी रिपोर्ट तो नहीं भेजते, पूरी आपकी स्टेटमेंट तो नहीं भेजते रिपोर्टिंग में, लेकिन आपकी बात हम सुन के उसकी एक हमने स्टेटमेंट लिख ली, उसके ऊपर फिर हमने रिपोर्ट भेजी, और फिर आपका टी वीज़ा फ़ाइल किया। और लोगों की काफ़ी कभी-कभी ये फ़िक्र होती है कि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, बस मैं अपने मुँह से आपको बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मेरे कोई टेक्स्ट मैसेजेस नहीं हैं, मेरे कोई कागज़ात नहीं हैं, मैं कोई तस्वीरें नहीं हैं कि मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे और कोई जानने वाले नहीं हैं, किसी और को पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं कहाँ से लाऊँ? तो यानी कि ये चीज़ें शायद अगर आपने कोर्ट में जाना हो, किसी का अरेस्ट करवाना हो, तो शायद ये चीज़ें ज़रूरी हों, लेकिन ये टी वीज़ा के लिए नहीं ज़रूरी होती, और रिपोर्ट के लिए नहीं ज़रूरी होती। तो कभी-कभी इसी वजह से जब हम रिपोर्ट भेजते हैं, तो वो कोर्ट में नहीं जाके केस खुलता। यानी कि पुलिस कोई अरेस्ट नहीं करती, शेरिफ कोई अरेस्ट नहीं करते, लेकिन आपका टी वीज़ा फिर भी हो सकता है। और हम आगे भी ये बात बोलेंगे, हेलन जी ने यह भी बताया था कि कभी-कभी बहुत देर बाद ये आप रिपोर्ट लिखवा रहे हैं हमसे, कभी बहुत साल गुज़र गए हैं उस गुनाह के बाद, बहुत साल गुज़र गए हैं कि आपके साथ जो हुआ, शायद वो 10 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ। तो उस स्टेट के, उस राज्य के कानून में, हुकूक में, वो शायद इतनी देर गुज़र गई है कि अब हम नहीं कर सकते कोई इसके मामले में हम कोई कोर्ट केस नहीं खोल सकते। लेकिन वो टी वीज़ा फिर भी हासिल हो सकता है, हालाँकि वो गुनाह 20 साल 30 साल पहले हुआ। So Helen, we'll just transfer over here into this section. You mentioned previously that sometimes it's too long, sometimes there's not as much evidence that could open up a criminal investigation in court. The statute of limitations may have passed, but the report can still be done, and it can still move forward into a T visa. So could you explain the rest of the slide as well? So then, we again are not obligated to convince an agency to pursue a human trafficking allegation. Sometimes the agencies may not even understand our legal argument, but immigration is in charge of understanding that. There is a policy guide, there's statutes and regulations that guide that understanding. And then if they still don't understand it, then they can certainly request more information. We can write them back, or we can take it to another level of review. Um, Now, in our state, in North Carolina, there really isn't a statute of limitations on the felony of human trafficking. But in other states, there may be a limit on when those things can be reported. And late reports is something we do all the time. We have cases where it goes back into the 1990s and we're reporting stuff that happened way back then, today in 2024, and still pursuing the T visa. Now, to the fourth point, some agencies can still take on a report if something were to come up later with the trafficker. And I think that is something important to be aware of. So the FBI has its own databases of information, just like you may see in the movies that, if there's DNA for one crime, and then they find out later on they arrest somebody who has that DNA, maybe they catch him for the old crime and the new one, right? So agencies do maintain some databases of information. But this also brings me to my point that our report by email to an agency
does not mean that that information is like publicly available. So investigators who receive these reports, they may have, they may not have confidentiality protections in the way that we have attorney-client confidentiality. But it wouldn't make any sense for an agency like the FBI or Department of Labor to just notify someone that they're suspected of a crime when they haven't built an investigation or have the facts to move forward with a prosecution. Now, the Department of Labor may also have previously investigated a trafficker, and then have closed that out. So it might be that a new report related to the same agency could trigger more interest, or it might be that they're not interested in anymore because they've already dealt with that agency a lot, and they're still in the process of sort of making amends for what they were already in trouble for with in the past. So just as far as taking on a report, now, in case something were to come up in the future, that is something that can be done. The Department of Labor has held also trainings with our offices and other law firms as well across the country, and has notified us that they don't release or can't release who reported a labor trafficking incident unless something were to actually move forward with criminal charges, at which point, if a case is a criminal charge, then yes, the defendant does have a right to know who essentially has accused them. But what I often tell clients is, if we're reporting a company that has been violating the labor laws so bad that it is human trafficking, it might be very difficult for them to guess who has reported them, because there could be people for decades back, dozens or hundreds of people who were victimized by the same organization. So while it can be a little stressful for our clients, I would say that oftentimes when somebody has been reported for human trafficking, it would be hard for them to guess who did report them, because they're already in trouble for so many things and have done this to so many others. सो यहाँ पर जो आपकी रिपोर्टिंग की बात हम कर रहे हैं और उसके बारे में और नए-नए जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसमें से एक ये भी है कि कई बार जिन एजेंसीज को हम आपकी ट्रैफिकिंग की रिपोर्ट कर रहे हैं, उन एजेंसीज को जरूरी नहीं है कि ये समझ में आए कि ट्रैफिकिंग का ये मामला क्यों है। कि हम जो आपकी लीगल आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं, जो आपके केस के सपोर्ट में हम उनसे कह रहे हैं, आप समझ लीजिए आप एक बहस कर रहे हैं। जैसे कोर्ट में एक बहस होती है कि हम कुछ कह रहे हैं आपके फेवर में और सरकार कुछ और कह रही है, वो नहीं मान रहे। तो ऐसे ही वो एजेंसी है जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ट्रैफिकिंग क्यों है। पर ये बिल्कुल साधारण बात है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सारी एजेंसीज़ को समझ में आए कि जो हम लीगली कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं। क्योंकि हम जो कह रहे हैं, उसका कुछ आधार होता है और वो आधार है टी वीज़ा रेगुलेशन। वो है सारे नियम और कानून जो कि एक्चुअली पब्लिश्ड है, जो कि वो वहां पर है, यूएससीआईएस के अधीन है। यूएससीआईएस मतलब सरकार जानती है उनके बारे में, तो हमें सिर्फ उनको बताना होता है कि ये हमने रिपोर्ट की है, हमने इस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की है। उनको नहीं समझ में आया, वो हमारा जिम्मेदारी नहीं है। हमारा काम था उनको बताना, हमने उनको बता दिया। हालांकि हमने इसमें बहुत सारा काम किया है हमारे ऑफिस ने, और पूरे देश में काफी सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि ट्रैफिकिंग क्या होती है, कौन कौन सी चीजें ट्रैफिकिंग के आधार पर आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जो कह रहे होते हैं वो दूसरे इंसान को समझ में नहीं आ रहा, और दूसरा इंसान यहाँ पर हम एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो हम उन्हें समझा सकते हैं। मतलब अज्ञानता को तो आप ज्ञान के प्रकाश से ही हटा सकते हैं। तो जब आप उनको ये बताते हैं कि ये ट्रैफिकिंग इसलिए है, तब शायद उनको समझ में आता है, और ये सारे हम ट्रेनिंग्स के जरिए कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आपके टी वीजा का सवाल है, अगर उन्हें वो समझ में नहीं भी आ रहा है कि ये टी वीजा क्यों है, कोई परेशानी नहीं है। सरकार को समझ में आ रहा है, और जिनको समझ में आ रहा है वो आपका टी वीजा फिर भी अप्रूव कर सकते हैं। अगर आपके मामले में बहुत ज्यादा समय निकल गया है, जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, मान लीजिए 20 साल बाद आ रहे हैं और ये सारा जो आपके साथ हुआ था वो 20 साल पहले हुआ था, हो सकता है नए कानून हो जिसके आधार पर
अब उस चीज के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी है कि ये ट्रैफिकिंग है, तो ये ट्रैफिकिंग कैसे है, अगर ये सेक्स ट्रैफिकिंग है, अगर ये लेबर ट्रैफिकिंग है, अगर ये वेज एंड आवर वायलेशन है, किस किस तरह की चीजें हैं, और उसी हिसाब से अलग अलग एजेंसीज को वो रिपोर्ट भेजी जाती है। तो वो एक छोटी सी ईमेल जो हमें लग रही है, आपको लग रही है बहुत छोटी सी ईमेल है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो बहुत बड़ी जगह पड़ता है। ये आपको हम समझाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपका देरी से भी आप हमारे पास आए हैं तो भी आपका टी वीजा अप्रूव हो सकता है। अगर किसी और लोगों को, जैसे कि अगर किसी और वकीलों को समझ में नहीं आया था कि वो आपका टी वीजा हो सकता है, तब भी आप हमारे पास आ सकते हैं और आपका हमारे फर्म में स्वागत है, क्योंकि वो टी वीजा बिल्कुल हो सकता है और वो एक आपका अच्छा केस जरूर हो सकता है, वो अप्रूव हो सकता है। तीसरी चीज है कि कभी कभी जो कुछ एजेंसीज हैं जो रिपोर्ट जिनको हम भेजते हैं, उनको वो केस पहले से ही आया हुआ होता है, मतलब किसी और ने भी उस एजेंसी के खिलाफ में वो रिपोर्ट की हुई होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो उस मामले में कार्रवाई कर चुके होते हैं, उसको खत्म कर चुके होते हैं, या कार्रवाई शुरू ही नहीं की होती है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास जो दस्तावेज है या उनके खिलाफ जो सबूत है वो उतनी नहीं है जो कि एक आपराधिक मामले को कोर्ट में साबित कर सके। तो वो खाली उस रिपोर्ट को रख लेते हैं, समझ लेते हैं, जैसे आपने कहा कि एक बच्चे ने एक गलती की और उसी गलती के मामले में 4 लोगों ने और उसकी शिकायत की, तो फिर वो मामला आप कहते हैं ठीक है, ये तो इसकी आदत है और इसका हम कुछ कर नहीं सकते, या हम कर रहे हैं, आपको हम बता नहीं सकते। तो कॉन्फिडेंशियलिटी जिस तरह से आपकी और हमारी चलती है कि आप इत्मीनान से हमें सब कुछ बता सकते हैं, हमारे हाथ में है वो, आपकी इजाजत के बिना हम किसको क्या बताएंगे, ऐसे ही डिपार्टमेंट्स के पास भी है वो अधिकार, कि वो ऐसा नहीं है कि आपकी रिपोर्ट हुई तो जाकर के वो पब्लिक फोरम पर सारी मिल जाएगी, जैसे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ। ऐसा कभी नहीं होगा। ये कॉमन सेंस की भी बात है, ये नियम की भी बात है, और ये प्राइवेसी इश्यूज भी यहाँ पर है कि हम आपके बारे में, या जो एजेंसीज हैं वो कि माइक लेकर के घोषणा नहीं करती फिरेंगी कि फलाने फलाने इंसान के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये सारे डर हम आपके मन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें बता के आपको कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो रिपोर्टिंग है, वो सब कानून का एक सिलसिला है आपके केस में। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें लेने होते हैं जो आपके केस के लिए अच्छे होते हैं। आपके ऊपर सीधे प्रकार से या इनडायरेक्ट तरीके से आपके ऊपर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी ऐसे कंसर्न है जो आपको लगता है कि नहीं, आप असहज हैं या मुझे इसके बारे में नहीं बात करनी है, तो आपसे जब हम कंसल्टेशन में ये सवाल पूछते हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या आप इस बात को गोपनीय रखना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं हम उनको बताएं, ना बताएं, कृपया आप हमें सीधा जवाब दें। आप जो भी चाहते हैं और आपकी जो भावना है उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। और आखिरी बात, एक दफ़ा फिर हम इस स्लाइड में समझाना चाहते हैं, और सौम्या जी आप मेरे साथ समझाएं जो हेलन ने ये कहा था कि जब हम वो रिपोर्ट लिखते हैं एफबीआई को, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को, या जिसको भी, तो वो जैसे आपने कहा था ना कि माइक लेके खड़े नहीं हो जाते बताने के लिए कि इस आदमी ने इसके खिलाफ रिपोर्ट की, यानी कि सबका नाम नहीं लेते सबके सामने। अगर वो कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन खुली हो, यानी कि अगर कोई अरेस्ट हुआ और फिर वो कोर्ट में गया, तो फिर शायद मतलब वो बात खुल जाए। लेकिन ज़्यादातर अगर हम जैसे हम रिपोर्ट भेजते हैं, तो ज़्यादातर अगर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ना खुली, अगर कोर्ट में ना जाना पड़ा, तो कभी किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो एजेंसीज़ हैं, वो भी उन वो तो नहीं बताना चाहेंगे कि हमारी कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, वो कहाँ से रिपोर्ट आई। वो भी उस विक्टिम को, यानी कि जिसके साथ ये बुरी चीज़ हुई, उसको भी वो प्रोटेक्ट करते हैं, उसको भी वो उसका नाम भी ढका रखते हैं। जी। सो यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि जो आरोपी है और जिसके साथ ये हुआ है, मतलब जो पीड़ित है, और अगर जो आरोपी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई पहले से ही चल रही है, मान लीजिए एफबीआई में कोई कार्रवाई चल रही है और हमने वो रिपोर्ट की, और उस समय ऐसा हो गया कि उस एजेंसी के खिलाफ 50 लोगों ने और रिपोर्ट की हुई हो और हमारी रिपोर्ट भी चली गई, तब भी आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो मतलब आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या नाम है, आप यहाँ कब आए थे, ये सारी चीजें जो हैं, वो एजेंसी भी उसकी सुरक्षा करती है। आपको
कोई परेशानी नहीं होने देने का एक लॉ है कि आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ये बताया किसी के खिलाफ कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो सुरक्षित रहती है। अगर कोई कानूनी कार्रवाई चल भी रही है उस इंसान के खिलाफ जिसके बारे में आपने हमें बताया है, तो भी आपको सीधे-सीधे आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई या किसी तरह की परेशानी आपको होना बहुत ही अ, अनिश्चित है कि आपके साथ कोई परेशानी होने वाली है। और हेलन जी ने ये भी बताया था हमें कि आप सोचें अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, कोई बड़ी सी फैक्ट्री है, कोई बड़ी सी कंपनी है, तो उन्होंने आपके साथ बुरा किया, ट्रैफिकिंग की और हमने वो रिपोर्ट भेज दी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को। और अगर वो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने इन्वेस्टिगेशन खोल दी, तो आप ये सोचें कि वो जो एजेंसी है, वो जो ऑफ़िस है, उन्होंने शायद इतने लोगों के साथ ज़्यादती की है, तो वो कैसे याद रखेंगे कि हाँ, हमने इस आदमी के साथ भी ये ज़्यादती की थी। तो यानी कि वो तो नहीं सोचेंगे कि इस आदमी ने हमारी रिपोर्ट लिखवाई और वो खोल के तो नहीं बताएँगे डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वाले। तो यानी कि लोगों को हम समझते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को इस मामले में बहुत परेशानी हो सकती है, बहुत डर हो सकता है और आप सिर्फ़ ये तसल्ली हम देना चाहते हैं आपको कि आप अ, हम पे विश्वास विश्वास रखें। आप हमें बताएँ कि आपके साथ क्या हुआ। जो हम रिपोर्ट लिखेंगे, वो हम आपको समझा के लिखेंगे, आपकी बात सुन के लिखेंगे, हम सोच समझ के भेजेंगे और फिर आपको भी समझाएँगे कि आगे आप क्या सोच सकते हैं कि आगे आप क्या होगा आपके साथ और इस रिपोर्ट के साथ और आपके टी वीज़ा के साथ। ज़रूर। और ये ज़्यादातर जो इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहे थे अभय जी, ये हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, क्रूज़ इंडस्ट्री, लैंडस्केपिंग इंडस्ट्री, जहाँ ये जो बड़े-बड़े लोग हैं, जहाँ पर कि एक इंसान शिकार नहीं है, हज़ारों की तादाद में लोग शिकार हैं, इस तरह की चीज़ों के। तो वहाँ पर ये कार्रवाई होना बहुत आम बात है और ज़्यादातर केसेज़ में उनको बस खाली एक लिस्ट होती है, जिसमें कि उनको नाम पता होते हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम उन्हें कभी नहीं पता होता है, याद भी नहीं रहता। And the last thing that we'd like our clients and our colleagues to understand about reporting in this situation is that it is not not a required part of the T visa application, the way that it is for a U visa application. It's not required to submit a signed law enforcement certification. So, for example, for a U visa, the application has to include a Form 918B, which is signed by the law enforcement agency. Maybe it's the police or the sheriff or the district attorney of that county. And they have to sign it to say that this person did cooperate in the investigation or prosecution of the case, and that has to be submitted as part of the U visa application. That is not a requirement for the T visa. The T visa does have a certification form, but it's not required that it be signed by the law enforcement agency and submitted alongside with the T visa application. So, kind of the way that we think about it is Congress or the American government who created this T visa remedy, they understood that law enforcement agencies might not have the capacity or maybe even the knowledge on staff at that time to investigate or prosecute a trafficking crime, a trafficking situation, or a report that comes before them. However, the one of the important purposes of the T visa is to encourage cooperation and reporting to law enforcement when trafficking crimes occur. So that is why the report is required, and we include proof of reporting in the T visa application. But the actual signed certification form is not a required part of the T visa application. Ms. Somia? थैंक यू तेबा। सो यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक टी वीज़ा और यू वीज़ा का कंपैरिजन है कि जिस तरह से यू वीज़ा जब हम आपका फाइल करते हैं तो आपके लिए फॉर्म साइन करना पड़ता है और उस फॉर्म के ऊपर हमें एक सिग्नेचर लेने पड़ते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से। और जब तक वो साइन नहीं हो जाता है और शायद वो फॉर्म आपका 918 बी है, अगर वो साइन हो जाता है उसको हम यू सर्ट बोलते हैं या यू सर्टिफिकेट बोलते हैं। और वो सर्टिफिकेट ये कहता है कि आपने कॉपरेट किया है लॉ एनफोर्समेंट के साथ में और उनको पता है कि आपके साथ क्या हुआ है। और उसके बाद जब वो सर्टिफिकेट साइन हो जाता है तब आपका यू वीजा फाइल हो सकता है। टी वीजा में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका टी वीजा अगर वो सर्टिफिकेट साइन हो जाए,
अच्छी बात है आपके केस के लिए, थोड़ा उससे बल मिलेगा। लेकिन अगर वो साइन ना भी हो जाए, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सरकार को पहले से ही ये पता होता है कि उनके पास कितने लोग हैं काम करने के लिए। क्या वो जो रिपोर्ट सारी इतने सारे पूरे देश में वकील हैं, अलग-अलग लोगों की रिपोर्ट भेजी जा रही है। क्या उनके पास इतने लोग हैं कि वो उन सब के मामले में कार्रवाई कर सकें? या क्या उनके पास इतने सबूत हैं या इतने सारे वकील हैं कि वो उसके ऊपर काम कर सकें? तो सरकार को पहले से ये चीज़ पता थी जब उन्होंने ये रेगुलेशन बनाया था। लेकिन वो फिर भी ये कानूनन चाहते हैं कि हम उनको कम से कम रिपोर्ट तो करें, कम से कम अपना सहयोग तो दें इस पूरी व्यवस्था को, या कहें कि पूरी न्यायिक व्यवस्था को चलाने में अपना सहयोग हम दें। उसी का एक पार्ट है आपकी रिपोर्टिंग। सो ये चीज़ हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि टी वीज़ा के लिए सर्टिफ़िकेट का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर वो सर्टिफ़िकेट मिल जाता है, अच्छी बात है, लेकिन टी वीज़ा आपका उसके बिना भी फाइल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। And so, just another reminder, something that people are worried about when they are being screened for a T visa, when they're speaking with an attorney, when they're trying to learn about their options. There's often worry that I don't have proof. This was so long ago. Now I was finally able to escape. I was finally able to leave and try to get away from the bad things that were happening. And this was in the past, and I'm safe right now, even though I'm still suffering from the effects of what happened to me, but I'm not in that trafficking situation right now. Or I don't even know where my trafficker is. I haven't talked to them for 5 years, for 10 years. Or I don't know when the last time was that they texted me. That is okay. It is still acceptable to prepare a report, send the report to law enforcement, and file a T visa and be approved for a T visa, even if the person is not currently being trafficked. They are not in contact with their trafficker. They haven't received a threat from the trafficker or any correspondence from the trafficker for years. They don't even know where the trafficker is. They haven't interacted with the trafficker for many years. They're no longer in control of that trafficker. They've been able to escape and start a new life. None of those things are going to be harmful to the T visa application as a whole. सो टी वीज़ा में क्वालिफ़ाई करने के लिए जो टी वीज़ा स्टैंडर्ड्स हैं, या जो वीज़ा के मानक हैं, उनके हिसाब से ऐसी बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अभी आपके साथ जो हो रहा हो, वो तुरंत हो रहा हो। मतलब जब हमारे पास आप आए हैं, उस समय सिचुएशन चल रही हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपके साथ, जैसा कि आपको हम बार-बार बता रहे हैं इस वीडियो में, कि अगर आपके साथ ये 5 साल पहले हुई थी चीज़ और उसके बाद आप वहाँ से भाग निकले, आप उनकी गिरफ्त से, उनके जाल से छूट के आपने अपनी एक ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। वो 5 साल पहले या 10 साल पहले हुई चीज़ भी आपके टी वीज़ा का आधार बन सकती है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बोलें कि मेरे पास तो कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं है, जब ये सब कुछ हुआ था, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि आपका वो जो तो स्टेटमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसीलिए, और आपका सच बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि अगर आपका ट्रैफ़िकर के साथ में कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, हो सकता है आपके पास उनका फ़ोन नंबर भी ना हो। हो सकता है कि आपकी उनसे बातचीत ही आखिरी 5 साल पहले हुई हो, जब आपने वहाँ से नौकरी छोड़ी हो। और ये सब कुछ वाज़िब बातें हैं, इसके बारे में आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। या फिर आखिरी चीज़ है कि हो सकता है कि वो ट्रैफ़िकर आपकी ज़िंदगी अभी भी कंट्रोल कर रहा हो किसी तरह से। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा पैसा लिया था और अभी भी वो आपने उसको नहीं दिया है, तो आप उसके किसी न किसी तरह से गिरफ्त में हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये सारे मामलात आप हमारे ऊपर छोड़ दें, हमारी टीम से आप बात कीजिए, और उसके आधार पर आपका टी वीज़ा ज़रूर फ़ाइल किया जा सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, हम आपको सारी चीज़ें यहाँ इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ गाइडलाइंस हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हर मामला अलग होता है, और उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे जुड़े होते हैं, वो आपसे हम कंसल्टेशन के दौरान पूछते हैं। Thank you so much, Somya ji, for reminding us in conclusion that all of these things that you have heard from us in our videos are guidelines, and that if anyone has questions about their immigration status or specifically about T visas, that they should please contact an attorney and book a consultation. And we are from Helen Terakich Law. Our website is www.terakichlaw.com. We're located in Wilmington, North Carolina, and our phone number is 910-509-7145. Thank you, everyone, and have a good day.
थैंक यू देबा जी। This video is property of Helen Tarakich Law, PLLC. Copyright 2024 or 2025. This video may not be posted anywhere except by Helen Tarakich Law or with written permission of Helen Tarakich Law. Each immigration case is unique. This video is for general informational purposes only and should not be taken as legal advice for a particular situation. Please consult an attorney to learn more about your options for immigration. The intended viewers of this presentation are current clients of Helen Tarakich Law, potential or future clients, or others wanting to learn more about immigration remedies. ये वीडियो हेलन टारोकीच लॉ पीएलएलसी द्वारा बनाया गया है, जिसके सर्वाधिकार सुरक्षित है 2024 या 2025 में। ये वीडियो एचटी लॉ की लिखित अनुमति के बिना कहीं पोस्ट नहीं किया जा सकता। हर इमिग्रेशन केस अपने आप में अलग होता है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एक उपयोगी जानकारी के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह से आप इसको अपने केस में लीगल एडवाइस या आपकी परिस्थिति में लीगल एडवाइस के तौर पर नहीं ले सकते। आपके केस के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कृपया आप अपने अटॉर्नी की सहायता लीजिए अथवा उनसे संपर्क स्थापित कीजिए। ये वीडियो जो एचटी लॉ के अभी क्लाइंट्स हैं अथवा भविष्य में जो हमारे क्लाइंट्स बनना चाहते हैं या बनेंगे अथवा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इमिग्रेशन के बारे में जानना चाहता है उनके लिए है। Please book a consultation to learn more about your immigration options. Call us or visit our website, Helen Tarakich Law, PLLC, in Wilmington, North Carolina, www.tarakichlaw.com. Our phone number is 910-509-7145. अपने इमिग्रेशन ऑप्शन अथवा अपने केस के सिलसिले में ज्यादा बातचीत करने के लिए अथवा कंसल्टेशन बुक करने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाकर क्लिक करें www.tarokichlaw.com अथवा आप हमारे फोन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9105097145।